Thuro nasazati pakan tuhundi bapat. Thuro nasazati pakan tuhundi bapat. Mikami vonanai chasit rav ravun. Yikami vonanai chasit rav ravun. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Öçen meanen çülekit kun harun. Kya zanak me kya çugudran. Kya zanak me kya çugudran. Bamorus palithinan ichubavun. Bamorus palithinan ichubavun. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Öçen meanen çülekit kun harun. Me kam dren andri şapıravyam. Me andri kam dren şapıravyam. Hana sochti paja itkan bumarun. Hana sochti paja itkan bumarun. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Öçen meanen çülekit kun harun. Suman kya cevap dikçi tas khudae. Suman kya cevap dik tas khudae. Samousari ajgil sar bachao. Samousari ajgil sar bachao. Yahai cha insaniyat gil sargalun. Öçen meanen çülekit kun harun. شکریہ سر. میرے پیارے بچوں، آج آپ سب کو پتہ ہے کہ آج انوائرمنٹل ڈے ہے. سب کو پتہ ہے نا؟ اور آج ہم پرپزلی اس جگہ پر آئے. اس کا ریزن یہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں گلسر. یہ جو برج ہے، اس سائڈ گلسر ہے، اس سائڈ خوشحال سر ہے. 2 سال پہلے اگر اس لیک کو آپ دیکھتے تھے، اس پہ جانور چلتے تھے، لوگ چلتے تھے. بدبو یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ان کو معلوم ہے اس کی حالت کیا تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے فیب 2021 میں اس کا انیشیٹو اٹھایا. اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ دیکھ لیجئے یہ لیک کیسی ہے. یہ کیسے ہوا، اس میں کریڈٹ دیتا ہوں یہاں کے سٹیک ہولڈروں کو، یہاں کے سرکار کو، خاص کر جو ایس ایم سی نے ہمارے ساتھ رول ادا کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور پھر یہاں پر جتنے بھی ہمیں تقریباً 2500 ٹرکس یہاں سے مک اٹھانا پڑا. چیلنجز بہت آئے یہاں کے لینڈ مافیا, لینڈ گریبر, سبوں نے تکلیفیں پہنچائی, مگر ہم پیچھے نہیں ہٹے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اصل میں بیٹا یہ کیا ہے کہ جو پانی کیچمنٹ ایریا سے آتا ہے, داشی گاؤں وغیرہ جہاں سے بھی آتا ہے, وہ جاتا ہے ڈل میں. ڈل کے بعد وہ آتا ہے نگین میں, نگین کے بعد آتا ہے پوکھری پل, پوکھری پل کے بعد آتا ہے یہ کہاں, نالے امیر خان. نالے امیر خان کے بعد آتا ہے گلسر میں, گلسر کے بعد جاتا ہے خوشحال سر میں, خوشحال سر کے بعد جاتا ہے صادق پور, پھر آنچار, پھر بولو. اگر یہ نیویگیشن سسٹم ختم ہو جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت, اگر 5-6 دن مسلسل بارش ہو جائے گی تو ہماری سٹی کو خطرہ ہے ڈوب. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں سب سے پہلے نیویگیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں لکما کا, جس کو پہلے لاؤڈا کہتے تھے. انہوں نے جو نالے امیر خان مین جو اسٹریم ہے اس کو صاف کیا, اس کو اریسٹ کر رہے ہیں. وہیں پر جو مک وغیرہ آتا ہے وہیں پر کرتے ہیں. پھر یہاں پر یہ جو یہاں پر گلسر ہے, سننے میں آیا ہے کہ اس کے 16 سپرنگس ہیں. آج ہم الحمدللہ شاید تیسرا سپرنگ ریسٹور کر رہے ہیں. 2 چیز یہ کرنے ہیں کہ ایک تو ہم آئی لینڈ یہاں قائم کریں. تو سب میرے ساتھ کہیں گے, آئی پلیج ٹو میک آل پاسبل changes in my life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, my friends, and others about the importance of environmental friendly habits. We all are concerned. So what I request, my humble submission to the government will be that they start drudging towards the restoration of these water bodies. Continuous keep a commitment to sustainability so that tourists will come and from Nigeen Lake up to Anchar will start that water 30 years before it used to be. Setting up STPs, جو یہاں پر سارا ڈرین جو اس میں جاتا ہے اس کے لیے ان کو STPs وغیرہ اس میں لگائیں گے. ریسٹوریشن آف چوکڈ سپرنگس, کم از کم 2 لیک میں کتنے ہوں گے, 19 واٹر سپرنگس ہے. دوز ہیو ٹو بی ریسٹورڈ. ڈیمارکیشن از موسٹ امپورٹنٹ تاکہ جو انکروچرز ہے وہ آگے نہ آئے ان فیوچر. Proper solid waste collection, boundaries caring of our lakes, ensuring safety. یہ ہماری تھوڑی سی ڈیمانڈیں ہیں جو ہم میمورنڈم آج آنریبل LG صاحب کو اور باقی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھیجیں گے. منظور صاحب نے ماحولیات کے تعلق سے آپ کو بتا دیا کہ یہ سر جو ہے 2021 میں جب ہم یہاں آئے تو یہ سر نہیں لگ رہا تھا, یہ لیک نہیں لگ رہا تھا, یہ واٹر باڈی نہیں لگ رہی تھی. لیکن اب 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد جو نیلکو نے کیا, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوشحال سر واقعی خوشحال ہے. تو اب اس موقع پہ جو خاص کر یہاں سٹیک ہولڈرز, یہاں کے محلے والے, یہاں کے رہنے والے اور نیلکو سے وابستہ افراد جس محنت کے ساتھ, جس تندہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کی زبان پہ آج ایک ہی بات ہوگی کہ نہ دیکھیں گے چمن برباد ہوتے کہ اس میں خون شامل ہے ہمارا. جس محنت کے ساتھ, جس تندہی کے ساتھ نیلکو نے محنت کی, سٹیک ہولڈروں نے محنت کی, اب اس کی حفاظت کرنا بچوں آپ کا فرض ہے, ہر ایک کا فرض ہے, کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں ٹھنڈ ہے, مئی کے مہینے میں برف باری ہو رہی ہے, 2 وقت کی بارش ہو رہی ہے, ماحول تباہ ہو چکا ہے, انسانی زندگی اور ماحول لازمی ملزوم ہے. یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے, یہ یہاں کے ہر فرد بشر کا کام ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بچائیں اور اپنی واٹر باڈیز کو بچائیں. اسی کے ساتھ نیلکو کا ایک بار پھر شکریہ حاجی منظور صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے افراد, خاص کر سکول اور اس کے ساتھ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز, ان کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. آپ سب لوگوں کا
यहाँ पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ पे आए और जो ये मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है ये कामयाब रहे, इसमें आप लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग जो हो, आप स्टूडेंट जो हो, आप हमारे मुस्तकबिल हो। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले 2-3 सालों से वो यहाँ पे लगे हुए हैं कि यहाँ पे जो है ये लेक है ये यहाँ पे साफ रहे, लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं का हाथ नहीं, इसमें हम सब लोगों का भी हाथ है कि जो हम इसको फूड करते हैं। हमारा हक बनता है, जब भी हम चलते हैं हमारे हाथ में जब भी कोई गंद होती है, कुछ होता है, हम वेट करते हैं कहाँ पे हम कोई दरिया देखे, कोई लेक देखे, कोई नाली देखे, कोई नदी देखे, उसमें हम डालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। To talk about this environment, let's know what the environment is. Environment is everything that includes the living beings around us, like the animals, the birds, the dogs, the stray dogs. We can include them in our day-to-day lives as we see. So what environment? It's all everything around us, and it's our responsibility to take the care of our environment. But we are also taking the reason of the pollution. As I saw this lake, it's actually polluted from all the sides, and it's our own responsibility. We are the cause that we are polluting our environment. So I hope that we all understand that all of us, it's our responsibility to take care of the environment. So from now on, let's make our parents, our family members and ourselves cautious about this thing that the environment should be clean. Excellent. Kuch Manzoor Sobin bade shukurguzar ya alaka sorry. Isha asan दुनिया में कहाँ नफर यूथ मंजूर सोब शो अल्लाह ताला करे इस दिल दुनिया आबाद क्या यशु वारिया असल काम असल करा। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंजूर बांग्लू साहब का, जिन्होंने मिशन एहसास के ज़रिए हम सबको ये एहसास दिलाया कि ये जो वाटर बॉडीज़, ये जो वेटलैंड्स है, इनको रेस्टोर करना जो है हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये वक्तन फ़वक्तन मुझे भी बुलाते रहते हैं अपने जो इस नेक काम में। आज उनकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मैं आपको ये बताऊं कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो घर में, मुझे बताइए सबके घर में पॉलिथीन आता है कि नहीं आता है? पापा जब लाते हैं शाम को कोई भी चीज़ लाते हैं, आप फ्रूट लाते हैं आपके लिए, मीट लाते हैं, तो किस में लाते हैं? पॉलिथीन में। तो आज से मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने पापा को रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि ये जो पॉलिथीन है इसके बहुत मुज़िर असरात हैं। अंडर मिशन एहसास 2021 में हमने जो ये प्रोग्राम उठाया था, उसमें पहले 2-3 दिन यहाँ के जो महल्ले वाले हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इन्होंने हम पर हंसा कि भाई यहाँ कितने आज तक आए, तो आप कैसे इसको साफ कर, ये हालत। क्योंकि आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की निस्बत से, जो 5 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में। और इस साल की जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और जहाँ तक प्लास्टिक पोल्यूशन की बात है, मुझे लगता है कि कश्मीर वादी जो है इसकी बहुत बड़ी विक्टिम है प्लास्टिक पोल्यूशन की, और जिसकी वजह से जो है हमारी तकरीबन तमाम जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है चौक हो चुका है, चाहे खासकर जो हमारा शहर श्रीनगर है। और जब भी यहाँ बारिश होती है, 1 घंटा 2 घंटा बारिश होते, पूरा ये बाद में ओवरफ्लो हो जाता है। और बाद में हम सरकार भी ये करते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। कोई भी करे, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आप देखें, अच्छन देख लें या वेस्ट डंप्स देख लें, हर मोहल्ले में देखिए, गली में देखिए, कोचे में देखिए, एरिया में देखिए, आपको जो कचरे का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का, या प्लास्टिक लिफाफा अलग है, या प्लास्टिक में भरा हुआ वो कचरा होता है। इसमें हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो यहाँ NGOs या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और भी संस्थाएं, उनका पता कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए, और वो प्रोग्राम चलने से ये जितना भी कम हम कम इस्तेमाल कर पाएँ इसका पॉलिथीन का, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। हम देखते हैं कि गायें होते हैं चलती हुई, वो भी ये प्लास्टिक खाती हैं, और ये हमारी ड्रेन्स, नालियाँ वगैरह सब इससे चौक हो जाती हैं।
पुराने दिन याद आते हैं मुझे। हावल में ही पला बड़ा हूँ। जडीबल से हम इस पानी के अंदर तैरने आते थे। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं मंजूर साहब जैसे वो ये वैसे वही काम करान एक्टिविज्म करान खासकर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म आज चूँकि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अच्छी वाइज की कशीर इको फ्रेजाइल एरिया ये एक हाईली सेंसिटिव इको फ्रेजाइल जोन है। यहाँ पे जो भी कचरा जमा होता है चाहे प्लास्टिक की सूरत में सॉलिड वेस्ट है लिक्विड वेस्ट है उसको जो आप नेविगेशन की बात कर रहे थे उसको नेविगेशन रूट नहीं मिलेगा तो ये एक बाउल में एक्यूमुलेट हो गया है इनफैक्ट। तो आई बिलीव वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। इसमें आप जैसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको एहसास है आपके मिशन एहसास के साथ हम साथ हैं बट वी नीड द गाइडेंस ऑफ ऑल आवर सीनियर्स स्पेशली कस्बा साहब फैज साहब हैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मोहल्ले वालों का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ मच मोर नीडेड। और दूसरी बात ये थी एक सजेशन मेरी ये थी कि डिमार्केशन यहाँ पे ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एक मैश वायरिंग अगर लगा दें तो दैट कोई इसमें कचरा वगैरह ना फेंके। हाँ क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो दूध के लिफाफे और पॉलीथीन अब भी पड़ा हुआ है और ये जिम्मेवारी आपकी तो हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट बी है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी है ऑल 24 आवर्स। ये हमारे भाइयों की जिम्मेवारी है। इनको यहाँ पे एक कमिटीज आपको एक स्काउट्स बनाने हैं ग्रुप्स बनाने हैं जो ये देखें कि आपका एरिया कैसे ठीक रहेगा। जिम्मेवार सारी मगर महल वाले थोड़ा जिम्मेवारी ज्यादा बना यमो मशाल तुजम तुम पकव अत मशाल पत पत सारी तुम चाहे लकड़ बड़ कुन तरीक यम तरफ मदद हेको कर करो तम तरफ पन मदद एज EPG कन्वीनर सर बिहत बहुत फाउंडिंग मेंबर फयाज साहब फाउंडिंग मेंबर पन हमेशा क्या ज्यादा लीगल साइड वुचान एनवायरमेंटू सान तरफ हेल्प कुन विज चीज सर वी आर देयर ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। मैं मंजूर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। ये तो नामुमकिन से मुमकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम तो हम टीम वर्क जो है जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि हम सब इस मैदान में उतरे हैं। अल्लाह ताला हमको हिम्मत दे। तालात आब वजान अमे खतर कोशिश कर सो करो इंशाल्लाह इकवट और वादे करो सारी ये कि करो अत पे काम करने कोशिश यम जन ये रोजन वल बाशन अल्लाह गवाह बहुत वन वन यह होटलियर साइट बहुत होटलियर साइट माना क्या अगर यपर टूरिस्ट ई पगह दुकानदार दुकानदार दुकान स्टार्ट कर अमिस अमिस रोज बे दुकान खोलान बाकी काम रोजान गो तुज आमदनी हुर मगर सो कम से मुश्क क्या सो कम से हुर यम साथ सप्लाई करो। ये बड़ी खुशी की बात है। इनफैक्ट मैं पहली दफ़ा यहाँ आया बट इस एरिया का जो मुझे इल्म है डिफरेंट पोस्टिंग से स्पेशली मैं लास्ट पोस्टिंग क्लास बट 1 SMC में जब काम करता था तो ये एक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ना फेट अकम्पनी समझते थे ये ठीक नहीं होना है। जैसे इन्होंने कहा कि कह रहा था इसकी बड़ाई करिए क्रिकेट विकेट खेलेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसे ही एक सोच डेवलप हो रही थी। तो जो काम मंजूर साहब ने किया और वो बड़ा काबिल तहसीन है। और आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मंजूर साहब को उनकी टीम को और यहाँ के जो बाशिंदगान हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस काम को बड़ा सराहा गया है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अपनी मन की बात में इसका जिक्र किया है। हमने देखा है ऑनरेबल गवर्नर साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं। SMC कमिश्नर जो आपके लेक्स एंड वाटरवेज के वाइस चेयरमैन भट्ट साहब उनका भी इसमें काफ़ी रोल रहा है। मगर मैं इसमें एम्फेटिकली बता सकता हूँ मंजूर साहब की काविशों की वजह से वो पॉसिबल हुआ है। क्योंकि जब इम्पॉसिबल लग रहा था तो इन्होंने पैर जमाए, इनकी टीम ने पैर जमाए इधर और बाकी लोग जुड़ गए। वली कामिल शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है आंत पोश दिली ये वन पोश। लेकिन पानी जब तक हमारे पास रहेगा तब हमारी ज़िंदगी रहेगी। हमारी ये वाटर बॉडीज़ जितने भी हमने एनक्रोच किया था पिछले कई दहाइयों से एक एहसास हो गया सारे कश्मीरियों को कि नहीं 2014 में जो सैलाब आया जिसने भयानक
रूप इख्तियार किया, डिज़ास्टर रूप इख्तियार किया है, उसने हमें एहसास दिलाया है कि नहीं, हमें इन वाटर बॉडीज़ को फिर रेस्टोर करना है। और इस रेस्टोर करने में हाजी मंजूर साहब वांगदू साहब ने, जो नेल्को के चेयरमैन और एम्बेसडर ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उन्होंने एक बेड़ा उठाया है और छोटे छोटे बच्चों में ये एहसास दिलाया है कि आप अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में, कामयाब बनाने में और महफूज रखने के लिए इन वाटर बॉडीज़ को महफूज रखना है।